السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے نوجوانوں کو مارکیٹ اور صنعتوں میں ہنر اور کھپت کے مطابق تربیت دینے کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم سعودی عرب میں ہیں، جہاں وہ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ نے ٹیکسٹائل کے شعبے کو تمام ممکنہ معاونت فراہم کرنے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران HIV کے علاج کے مراکز کی تعداد 49 سے بڑھ کر 94 ہو گئی ہے۔ بحری فوج کے سربراہ نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاک فوج ملک کا تحفظ اور استحکام یقینی بنانے کے لیے دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط فصیل کا کردار ادا کرتی رہے گی۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کے لیے صحت مراکز کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے لندن میں ایک تقریب کے دوران جموں کشمیر سے متعلق بیان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں انسانی امداد کی مکمل فراہمی یقینی بنائے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا فائنل بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان اتوار کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے حوالے سے حکومت ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سمیڈا میں مارکیٹ سے نئی ہنرمند افرادی قوت بھرتی کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ شفاف طریقہ کار اپناتے ہوئے سمیڈا میں بین الاقوامی معیار کی ورک فورس کو بھرتی کیا جائے، جن کی تنخواہ مارکیٹ ریٹس کے مطابق ہوں۔ انہوں نے SME شعبے کے لیے لیبر کی پیشہ ورانہ تربیتی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سمیڈا کا ہماری دیہی معیشت کی بڑھوتری میں اہم کردار ہے۔ تمام دیہی آبادی بشمول دیہی خواتین کو سمیڈا کے بلا سود قرض پروگرام سے مستفید کرنے کے لیے لاہے عمل بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے وفاقی سطح پر پیشہ ورانہ تربیت کے تمام اداروں کو ایک ادارے میں ضم کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر مائکرو انٹرپرائزز کو SME سیکٹر کا حصہ بنا دیا گیا اور اس حوالے سے جامع پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر سمیڈا بورڈ میں نجی شعبے کی نمائندگی بڑھائی جا رہی ہے۔ سمیڈا میں افرادی قوت کو سکلز ٹریننگ اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے حوالے سے حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزارت تجارت اور سمیڈا برآمدات کے حوالے سے متعلقہ کمپنیز کی نشاندہی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر SME کے شعبے کے حوالے سے سمیڈا نے 28 سیمینارز اور تربیتی پروگرامز منعقد کیے، جن میں 953 افراد نے شرکت کی۔ SME شعبے کے لیے فائنینشیل لٹریسی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ماہرین کی بھرتی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ SME شعبے کے برآمدات بڑھانے کے حوالے سے ایکسپورٹ اسیسمنٹ پروگرام بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ SME سیکٹر کی سب کانٹریکٹنگ کے حوالے سے قانونی لاہے عمل تیار کیا جائے گا، جس کے لیے ماہرین کی بھرتی کا عمل جلد شروع کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نوجوانوں کو مارکیٹ اور صنعتوں میں درکار ہنر اور کھپت کے مطابق تربیتی پروگرامز فراہم کرنے کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ آج اسلام آباد میں نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پلان پر جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پلان پر ماہانہ جائزہ اجلاس کی ذاتی طور پر صدارت کرنے اور اس پر عمل درآمد کی نگرانی کا فیصلہ کیا۔ اجلاس کو آئندہ 4 سالوں میں مختلف اداروں کے ذریعے تربیت اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لاہے عمل پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں تربیت کے لیے مقامی صنعتوں سے مسلسل روابط اور افرادی قوت کے بین الاقوامی اداروں کی کھپت کو مد نظر
रखने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने मकामी सनतों में दरकार हुनर के हवाले से एक जामे डेटाबेस कायम करने की भी हिदायत की। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि बासलाहियत नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं। उन्होंने कहा हुकूमत नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और ज़रूरी हुनर फ्राहम करके उन्हें बाइख्तियार और रोज़गार फ्राहम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को बैनुल अक़वामी मयार की तरबियत की फ़राहमी से अफरादी क़ुव्वत की बरामद के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इजलास को बताया गया कि आइंदा 4 बरस में 24 लाख से लेकर 60 लाख सालाना तक नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और हुनर की फ़राहमी से रोज़गार के मौक़े हासिल करने में मदद की जाएगी। इजलास को बताया गया कि नौजवानों की हुनर और पेशा वराना तरबियत की फ़राहमी के लिए मार्केट और सनतों और बैनुल अक़वामी सतह पर अफरादी क़ुव्वत की खपत को मद्देनज़र रखा जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि डिजिटल यूथ हब हतमी मराहिल में है, जिसका इजरा रवामा कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका तमाम वज़ारतों और इदारों की इस हवाले से काविशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपना भरपूर ताउन जारी रखेगी। वो मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी जनरल मुर्तज़ा जावेद अब्बासी से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए अपने अज़्म पर जोर दिया। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करने और हज़ारा मोटरवे पर एबटाबाद और गिरदनवाह के लोगों की सहूलत के लिए एक और इंटरचेंज का संग बुनियाद रखने की दावत दी। आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मोइन भट्टो और वज़ीर ममलकत मलिक रशीद अहमद ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना में शमूलियत पर मोइन भट्टो और मलिक रशीद को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और साबिक नेवल चीफ एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद सरोही के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। अपने एक बयान में वज़ीर आज़म ने उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और मरहूम की बुलंदी दर्जात की दुआ की। वज़ीर आज़म ने मरहूम इफ्तिखार सरोही की पाकिस्तान नेवी के लिए खिदमात पर उन्हें खिराजी अक़ीदत पेश किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सऊदी अरब में हैं, जहाँ वो जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। आला सतह के इस इजलास में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत से पैदा होने वाले इंसानी बहरान और उन्हें उनके आबाई वतन से बेघर करने की गैर कानूनी और गैर अखलाकी तजावीज़ पेश करने पर फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल के जवाब में मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में नायब वज़ीर आज़म फ़लस्तीनियों के मुनसिफ़ाना नस्बुलैन के लिए पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और मुस्तकिल हिमायत का इआदा करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टेक्सटाइल के शोबे को तमाम मुमकिना मुआवनत फराहम करने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इज़हार किया है। उन्होंने इस अज़्म का इज़हार आज इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की क़यादत से मुलाकात में किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के सनती शोबे में तवील मुद्दती इस्तेहकाम और मुस्तक़बिल की तरक्की यकीनी बनाने के लिए टैक्सेशन, तवानाई, माहौलियात से मुताल्लिक़ अहम मसाइल के हल के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान का खैर मकदम करते हुए वफ़द को यकीन दिलाया कि हुकूमत मुल्क की मईशत में टेक्सटाइल सनत के अहम किरदार को तस्लीम करती है और इसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पुरअज़्म है। इससे कबल चेयरमैन कामरान अरशद के ज़ेर क़यादत एप्टमा के वफ़द ने टेक्सटाइल शोबे को तवानाई, टैक्सेशन और मालियात से मुताल्लिक़ कई अहम मसाइल पर तफसीली प्रेजेंटेशन दी। आज सेनेट को बताया गया कि गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान HIV के इलाज के मराकज़ की तादाद 49 से बढ़कर 94 हो गई है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एक तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि इन मराकज़ में तशख़ीस और इलाज मुआलजे की सहूलतें मुफ्त फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मरज़ से मौसर तौर पर निपटने के लिए आगाही मुहिम का एहतमाम किया जा रहा है। उधर सेनेट ने आज खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी के तरमीमी बिल मजरिया 2025 की मंजूरी दी। ये बिल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया था। ऐवान में मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के शुहदा के लिए फातिहा ख़ानी भी की गई। बाद में ऐवान का इजलास हफ्ते के रोज़ दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
बहरी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मजबूत फसील का किरदार अदा करती रहेगी। उन्होंने ये बात मंगल के रोज़ बन्नू छावनी पर ख्वारिज की दहशतगर्दी के नाकाम हमले के बाद आज दौरा बन्नू के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कही। दौरे के मौके पर बहरी फौज के सरबराह को जारी कार्रवाइयों और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के इस घिनौने और बुज़दिलाना हमले में शहीद मासूम शहरियों के अहले खाना से दिली ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि अगरचे इस वाक़े के मुजरिमों को बहादुर जवानों ने फौरी तौर पर ठिकाने लगा दिया था, ताहम इस बुज़दिलाना हमले के मंसूबा साज और सहूलत का जहाँ कहीं भी हैं उन्हें भी कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बहरी फौज के सरबराह ने कहा कि बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों समेत शहरियों पर सफ़ाकाना हमले करने वाले दुश्मन इस्लाम ख्वारिज के हकीकी अज़ाइम बेनकाब हो गए हैं। आर्मी चीफ ने मकामी कम्युनिटी के कलीदी किरदार पर जोर देते हुए इस बात का अयादा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद और यकजहती नागुज़ीर है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फौजियों से खिताब करते हुए उनके दलेराना इक़दामात की तारीफ़ की और हमलावरों को बेबस करने और उनके घिनौने इरादे नाकाम बनाने के लिए जवानों की फौरी और फैसलाकुन जवाबी कार्रवाई की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि दुश्मन अनासिर के इशारे पर चलने वाले ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ लड़ाई उनके मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। बहरी फौज के सरबराह ने यह बात वाज़ेह की कि फितना ख्वारिज समेत दहशतगर्द ग्रुप अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के हालिया हमलों में गैर मुल्की हथियारों और आलात का इस्तेमाल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अफगानिस्तान ऐसे अनासिर की महफूज पनाहगाह रहा है। उन्होंने ये बात फिर जोर देकर कही कि किसी को भी पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। बलूचिस्तान के इलाके तोबा खाखड़ी में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से कलाशनकोव, दस्ती बम और दीगर आतिशी असलहा बरामद हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने बड़ी तखरीबी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ़ किया। एक गिरफ्तार दहशतगर्द ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा कि वो 3 रोज़ कबल अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ इस ऑपरेशन की कामयाबी में मकामी आबादी ने अहम किरदार अदा किया। हुकूमत पंजाब ने देही इलाकों में सेहत की सहूलियात बेहतर बनाने के लिए सेहत मराकज़ को आउटसोर्स करने का फैसला किया है। तफसील रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अतर रसूल की इस रिपोर्ट में। आज लाहौर में वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे भर में दही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का सूली फैसला किया गया। इजलास को बताया गया कि मराकज़ सेहत में बड़े अस्पतालों के बराबर तिब्बी और तशखीसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ सरगोदा में जून तक OPD जबकि नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को मुकर्ररा मुद्दत में फाल करने की भी हिदायत की। मरीम नवाज ने कहा कि सूबे के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हमारा हदफ है। उन्होंने कहा कि पंजाब के तमाम अस्पतालों में जरूरत के मुताबिक जदीद तरीन तिब्बी आलात मरहलावार फराहम कर रहे हैं, जबकि डॉक्टरों और तिब्बी अमला की कमी के मसले पर काबू पाने के लिए पायदार इकदाम भी किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि पसमानदा और दूर दराज इलाकों के अवाम को भी जदीद तिब्बी सहूलियात की जरूरत है। अतर रसूल, रेडियो पाकिस्तान, लाहौर। सिंध हुकूमत ने सूबे के अस्पतालों में अमले की कमी को पूरा करने के लिए वैक्सीनेटर्स, तकनीकी अमला और नर्सों को भर्ती करने का फैसला किया है। ये फैसला वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत आज कराची में महकमे सेहत के इजलास में किया गया। इजलास में सूबे के ज़िले और तुल्का हेडक्वार्टर अस्पतालों और दही मराकज़ सेहत में सानवी सतह की सहूलियात के 125 यूनिट फ्राहम करने का फैसला किया गया। सैयद मुराद अली शाह ने अवाम की सहूलत के लिए सिविल हस्पताल कराची में मेडिकल एंड सर्जिकल टावर और लाड़काना में इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के क़याम की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में 11 न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर कायम करने की भी मंजूरी दी। वापडा के चेयरमैन सज्जाद गनी ने आज इस्लामाबाद में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा में पानी के हवाले से जारी और मुजव्वज़ा मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में ज़राई इनकलाब के लिए चश्मा लिफ्ट कैनाल के मंसूबे का इफ्तिताह निहायत अहम है।
स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने खुई रट्टा आज़ाद कश्मीर में एक फ्रीलांसिंग हब कायम किया। इस इकदाम से बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को डिजिटल मईशत में अपना मौसर किरदार अदा करने के मौके हासिल होंगे। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के विजन 2025 का मकसद 2 साल में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 100 IT मराकज़ कायम करना है। खुई रट्टा का फ्रीलांसिंग हब 63वां IT सेंटर है जो सिर्फ 16वां में कायम किया गया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की जानिब से लंदन में एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर से मुतालिक बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान ने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ये बयान ज़मीनी हक़ाइक़ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफ़ी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर आलमी तौर पर मुसल्लमा मुतनाज़ा इलाक़ा है। शफ़क़त अली ख़ान ने कहा कि भारत को आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में बेबुनियाद दावे करने के बजाय गुज़श्ता 77 बरसों से अपने ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के बड़े इलाके को खाली करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को इतराफ़ करना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के तनाज़े का पूरा हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। इस्लामिक स्टेट सूबा खरासान के सरकर्दा ऑपरेशनल कमांडर शरीफुल्लाह की हालिया गिरफ्तारी और उसे अमेरिका के हवाले करने के बारे में एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान खुफिया इत्तलात के शोबे में देरीना ताउन है। तर्जुमान ने कहा कि इस्लामिक स्टेट सूबा खरासान समेत दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों के नतीजे में नुमायां कामयाबियां हासिल हुई हैं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल करते हुए अमेरिका के साथ ताउन किया और शरीफुल्लाह को उसके हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों से जाहिर होता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि खुफिया इत्तलात में ताउन होता रहा है और ऐसी कार्रवाई का ये पहला मौका नहीं है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत और उसकी बदउनवान इंतज़ामिया अपने हिंदुत्व एजेंडे के निफाज से मकबूज़ आबादी के ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील नहीं कर सकती। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि कश्मीरी अवाम के शहरी कानूनी और मजहबी हुकूक की अगस्त 2019 से मुनज़्ज़म अंदाज में खिलाफ वर्जी जारी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा कि एक दिन भारत को मसले कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को तस्लीम करना पड़ेगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने इसराइल पर जोर दिया है कि वह अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए गजा के लिए इंसानी इमदाद की बिला तातुल फ़राहमी यकीनी बनाए। उन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से जारी करदा एक मुश्तरका बयान में तीनों यूरोपीय ममालिक ने गजा के लिए इमदाद रोकने को बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने इसराइल की जानिब से इमदाद की तरसील पर आयद बंदिश के बाद गजा में इंसानी आबादी की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी फंड ने एक बयान में कहा कि इस बंदिश से ख़तरा है कि जंग बंदी के अरसे में होने वाली पेशरफ्त के असरात ज़ाइल हो जाएंगे और ऐसे वक्त में जब लोग महज जिंदा रहने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और इस नाकाबंदी के दूरस असरात मुरतब होंगे। इंसानी उमूर के लिए राबतों के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर ने गजा में संगीन ग़ज़ाई किल्लत को उजागर करते हुए इंसानी बुनियादों पर इमदाद की बिला रोक टोक रसाई की फौरी ज़रूरत की अहमियत पर जोर दिया। बच्चों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी हंगामी फ़ंड ने गजा के लिए इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद की फौरी रसाई पर जोर देते हुए खबरदार किया कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो हज़ारों बच्चों की जानें ख़तरे में पड़ जाएंगी। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश हैं खेलों की खबरें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान इतवार को दुबई में खेला जाएगा। मैच दिन 2 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान ख़वातीन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जो 18 से 26 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया का पहला गैर मुल्की दौरा करेगी। पीबीसीसी के मुताबिक ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 T20 मैच खेले जाएंगे। 17 रुकनी स्क्वाड के हमरा 4 ऑफिशियल्स भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तैयारियों के सिलसिले में कौमी टीम का तरबियती कैंप 6 से 16 अप्रैल तक लाहौर में होगा। पाकिस्तानी ख़वातीन क्रिकेट टीम के स्क्वाड में B1 कैटेगरी में रिमशा शबीर, शुमाइला किरण, सायरा बुशरा ज़हूर,
ईशा फैसल और B2 कैटेगरी में निमरा रफ़ीक, किरण रफ़ीक, नुसरत बतूल, मरियम खान, हुरिया मलिक, राबिया नवीद और B3 कैटेगरी में नीशा, ईमान अरशद, महरीन अली, फरहत गफूर, अरमीन तारिक और नूर फातमा शामिल हैं। स्क्वाड के ऑफिशियल्स का ऐलान चंद रोज़ में होगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी नेशंस कप का तीसरा एडिशन इस साल 15 जून से 21 जून तक मलेशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में होगा। टूर्नामेंट में 2025-26 के लिए FIH हॉकी प्रो लीग क्वालिफाई करने वाले विनर्स के साथ पाकिस्तान समेत 8 टीमें हिस्सा लेंगी। दीगर टीमों में फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और वेल्स शामिल हैं। 14वें जनूबी एशियाई गेम्स की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा, जो आइंदा बरस 23 से 31 जनवरी तक होंगे। जनूबी एशियाई गेम्स में 27 मुख्तलिफ खेल शामिल हैं, जो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और पंजाब के शहरों लाहौर, फैसलाबाद और नारोवाल में खेले जाएंगे। ये थी खेलों की खबरें और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगी तिजारती खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि एसी 100 इंडेक्स 1459 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,13,713 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 373 मिलियन से जायद हिस्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 263 मिलियन से जायद हिस्स का लेन देन हुआ था। आज पाक इंटरनेशनल बल्क कंपनी के सबसे ज्यादा 48 मिलियन से जायद हिस्स का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 441 कंपनीज के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 220 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 142 में कमी, जबकि 89 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 167 रुपये 51 पैसे का इजाफा, जबकि नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 137 रुपये 18 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 279 रुपये 50 पैसे, कीमत फ़रोख्त 280 रुपये 25 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 360 रुपये 45 पैसे, 361 रुपये 9 पैसे। यूरो 301 रुपये 77 पैसे, 302 रुपये 31 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 61 पैसे, 74 रुपये 74 पैसे। और UAE दिरहम कीमत खरीद 76 रुपये 70 पैसे, जबकि कीमत फ़रोख्त 76 रुपये 84 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,65,522 रुपये रही। ये थीं तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें। मुमताज़ पाकिस्तानी उर्दू और पंजाबी फिल्मों की गुलकारा नसीम नाज़ली अलमारूफ माला की 35वीं बरसी आज मनाई गई। उनके हालात ज़िंदगी के बारे में रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की ये रिपोर्ट। 6 मार्च सन 1990 को पाकिस्तान की मकबूल गुलकारा माला अपने खालिक की हकीकी से जा मिली। माला का असल नाम नसीम नाज़ली था। वो सन 1942 में फैसलाबाद में पैदा हुई थी। अनवर कमाल पाशा ने उन्हें माला का फिल्मी नाम दिया।
مزاحیہ اداکار امان اللہ خان کی 5ویں برسی آج منائی گئی۔ 45 سال سے زائد عرصے پر محیط اپنے فنی سفر میں انہوں نے فلموں اور ٹیلی ویژن شوز کے علاوہ 2000 سے زائد ڈراموں میں کام کیا۔ امان اللہ کا شمار برصغیر کے بہترین مزاحیہ اداکاروں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے فنی سفر میں 860 شوز کرنے کا ریکارڈ قائم کیا اور ان کی خدمات کے صلے میں انہیں 2018 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ امان اللہ خان 2020 میں آج کے روز لاہور میں گردے فیل ہونے کے باعث انتقال کر گئے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ آسٹریلیا کے ایک سٹارٹ اپ نے انسانی دماغ کے خلیے پر چلنے والے دنیا کے پہلے کمرشل بایولوجیکل کمپیوٹر کو متعارف کرا دیا ہے۔ میلبرن کی کارٹیکل لیبس نے 3 سے 6 مارچ تک بارسلونا میں منعقد ہونے والی ورلڈ موبائل کانگریس میں اپنا CL1 لانچ کیا، جو مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس میں انقلابی تبدیلیاں لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کمپیوٹر لیب میں بنائے گئے نیورو استعمال کیے گئے ہیں، جن کی نمو ایک سلیکون چپ پر ہوتی ہے، جس سے یہ برقی سگنل بھیجنے یا موصول کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ چینی ٹیکنالوجی کمپنی نے ایک لیپ ٹاپ بنایا ہے جو شمسی توانائی سے بآسانی چارج کیا جا سکتا ہے۔ چینی کمپنی کے بنائے گئے نئے لیپ ٹاپ کی کیسنگ میں سولر پینل لگائے گئے ہیں جو گھر سے باہر ہونے پر ڈیوائس کو چارج کر سکتے ہیں۔ بارسلونا میں ہونے والی موبائل ورلڈ کانگریس میں پیش کیے جانے والے اس نئے یوگا سولر پی کے حوالے سے کمپنی کا کہنا ہے کہ صرف 20 منٹ کی سولر چارجنگ سے لیپ ٹاپ پر 1 گھنٹے کا ویڈیو پلے بیک مل سکتا ہے۔ ناسا کے خلاباز بوچ ویلمور اور سنی ولیمز، جنہوں نے گزشتہ سال جون میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کا سفر کیا تھا اور وہیں پھنس گئے تھے، اب 9 ماہ کے طویل قیام کے بعد زمین پر واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ مشن گزشتہ موسم سرما میں اس وقت شروع ہوا جب ویلمور اور ولیمز نے ISS کا سفر شروع کیا۔ بدقسمتی سے کیپسول میں خرابی پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے ناسا نے خلابازوں کی حفاظت کو ترجیح دی اور انہیں اسپیس اسٹیشن پر محفوظ طریقے سے رکھا، لیکن اب وہ اگلے ہفتے لانچ ہونے والے اسپیس ایکس کیپسول میں زمین پر واپس آئیں گے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ہمارے موسمیات محمد جنید سے۔ موسمی سیارے سے لی گئی تصویر کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش یا ہلکی برفباری ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے کم درجہ حرارت لے میں -13 ڈگری سینٹی گریڈ، استور میں -6، کلام -4، گوپیز اور ہونزہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر عام شہروں کی کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 2، لاہور 11، کراچی 17، پشاور 5، کوئٹہ -1، مظفر آباد 3، گلگت 4، اسکردو -2، سری نگر -3، جموں 9، پلوامہ -1، اننت ناگ -2 اور شوپے میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے نوجوانوں کو مارکیٹ اور صنعتوں میں ہنر اور کھپت کے مطابق تربیت دینے کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم سعودی عرب میں ہیں، جہاں وہ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خزانہ نے ٹیکسٹائل کے شعبے کو تمام ممکنہ معاونت فراہم کرنے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران HIV کے علاج کے مراکز کی تعداد 49 سے بڑھ کر 94 ہو گئی ہے۔ بحری فوج کے سربراہ نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاک فوج ملک کا تحفظ اور استحکام یقینی بنانے کے لیے دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط فصیل کا کردار ادا کرتی رہے گی۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کے لیے صحت مراکز کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے لندن میں ایک تقریب کے دوران جموں کشمیر سے متعلق بیان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اور ICC چیمپئنز ٹرافی کا فائنل بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان اتوار کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے طلحہ جبار، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید۔
مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر ملاحت سولت، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عبدالقدیر، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔